Hello students, myself Poonam, and today we are going to learn the second poem of class 12, Keeping Quiet by Pablo Neruda. So let me tell you the very interesting fact of this poem. Pablo Neruda, the poet, used to write with the green pen. Do you know why? Because green pen symbolizes nature, and in this poem he gives the theme of universal brotherhood. He talks about nature, he talks about the universal brotherhood. See, you'll see the first line, now we will count to 12 and we'll all keep still. We, just focus on the we. See, the poet is not in a state where he is giving just, he is not giving a message only, okay, you will do, yeah, I will do. We is actually important because in this poem, by using word we, the poet is trying to make the reader involved in the message that he is imparting to the people. Now we will count to 12 and we'll all keep still. See, the most important thing, the poetry device of the poem. We will count up to 12 and we'll all keep still. See, the two phrases are contradictory to each other. Either we will count to 12 or we will all keep still. या तो हम गिनती गाएंगे राइट और या फिर हम क्या करेंगे वी विल कीप स्टिल सो दीज आर एक्चुअली टू फ्रेजेस व्हिच आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर सो वेयर वी नोटिस एक्चुअली जहां दो कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स होते हैं फ्रेजेस होते हैं सॉरी सो दिस इज एक्चुअली एंटीथेसिस दिस इज एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस इज एंटीथेसिस See, we will notice the word 12. Number 12 is given. So 12 number is actually symbolize time because there are 12 months in a year. So जो 12 word दिया right है actually 12 जो number दिया है this is given for the time. We will count to 12 and we'll all keep still. I hope this is clear. For once, on the face of the earth, let's not speak in any language. For once, कुछ time के लिए, on the face of the earth is like a surface of the earth, means the people, where the people are living. Let's not speak in any language. हमें किसी भी language में बात नहीं करनी. We'll not talk in any language. Let's stop for 1 second. For a moment, really. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. See, the arms, A-R-M-S, focus on this word, arms. In this, there's a pun, P-U-N. Pun is a figure of speech where pun is like, actually when a word gives two parallel meaning, two different meaning. Arms is like our hands and arms are the weapons as well. So the poet is talking about, okay, let's, for 1 second only, for a moment only, let's stop for 1 second and not move our arms so much. Neither we will be using any kind of weapon or neither we will be using any hand. See, आगे चलते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन. सी दैट विल बी द मोमेंट ना जो जब जहाँ कहीं कोई रश नहीं हो रहा, जहाँ पे जब सब कुछ स्टिल है, सब कुछ साइलेंट है, दैट मोमेंट विल बी एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मींस क्या होगा? बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट. कौन सा वाला मोमेंट होगा? बच्चे कंफ्यूज होते हैं समटाइम्स. या एक्सोटिक मोमेंट होगा वो जो एक पल होगा ना जब सब लोग बिल्कुल शांत होंगे, विदाउट रश विदाउट इंजन. कोई रश नहीं है, कोई भागदौड़ी नहीं है, कोई मशीनरी काम नहीं करी. वी वुड बी ऑल टुगेदर इन अ सडन स्टेज. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल इन द क्लास एज वेल. सी when there's assembly in the school ground, so the students are standing. वहाँ पे फर्स्ट क्लास का बच्चा भी खड़ा है, वहाँ पे 12th क्लास का बच्चा भी खड़ा है. They are not knowing each other, ठीक है, जानते नहीं है, but still you know they are in a uniformity. They are doing only same thing. तो जब वो uniformity create हो रही है ना, so that is giving the feeling of strangeness but togetherness. Strange है because they are not knowing each other, but क्योंकि एक जैसा काम कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे थे, togetherness की feeling आती है. So poet क्या कर रहा है कि if you all will keep still, if we all keep still for a moment, so what will be happen? That will be an exotic moment. And जब हम पूरे यूनिवर्स, he is not talking about a country, one country or two countries, he is talking about the whole universe, पूरे अर्थ पे. वो कह रहा है कि जब सब लोग शांत होंगे, कुछ एक मोमेंट के लिए हम सब लोग शांत होंगे, तो क्या होगा? We would all be together in a certain strangeness. The most important lines पढ़ जाती हैं. Fisherman in the cold sea would not harm whales. मुझे एक जो पल होगा ना, एक जो मोमेंट होगा जिस टाइम में हमें अपने आर्म्स को नहीं यूज करना, वो जो मोमेंट होगा उस टाइम में क्या होगा? Fisherman in the cold sea would not harm whales. जो फिशरमैन है, जो फिशिंग के लिए जाते हैं, will not be able to catch the fish that time. And the man gathering salt would look at his hard hands. Or the person, those who are actually involved in the business of the salt. ठीक है, तो salt is very harsh in the nature. तो क्या करता है? हाथों को इंजर कर देता है. तो होता क्या है? So he is saying that the man gathering salt would look at his hard hand. जो मोमेंट है ना आपका, when you are quiet, when you are still, when you are counting up to 12. So actually the poet is talking about introspection. काउंटिंग नहीं करनी है. काउंटिंग मीन्स इंट्रोस्पेक्शन करना है. सी द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्ट नोट इट डाउन. इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप को, इंट्रो मीन सेल्फ इंस्पेक्शन, अपने आप को एक्चुअली एनालिसिस करना. तो क्या कह रहा है? तो वो जो इंट्रोस्पेक्शन पीरियड होगा उसमें क्या होगा? जो फिशरमैन है वो फिशिंग करने नहीं जा पाएंगे, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है वो क्या करेगा? वो अपने हार्ड हैंड्स को देखेगा. सी दिस वाज द वर्बल मीनिंग ओनली. लेट मी टेल यू द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दिस पोएम. फिशरमैन सिंबलाइज द पीपल इन द पावर. फिशरमैन क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है पीपल हु आर इन पावर. एक्चुअली होता क्या है? द पीपल दोज हु आर इन पावर दे एक्सप्लॉइट द वीकर साइड. सो जो वो मोमेंट होगा ना जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, तो जो पावरफुल पीपल हैं दे विल नॉट बी एबल टू हार्म द वीक पीपल ऑफ द सोसाइटी. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. मैन गैदरिंग सॉल्ट एक्चुअली सिंबलाइज करता है वेल्थ को या फिर मनी आप कह सकते हो. द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. होगा क्या कि द पीपल दोज हु आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो हम एक रेट रेस में लगे हैं कि हमें ये पैसा कमाना है, वो कमाना है, और हम ना कभी भी अपने आप को टाइम नहीं देते. तो होता क्या है? मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. इन दिस सिचुएशन आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ द कोविड पीरियड. सी कोविड पीरियड में व्हाट हैड हैपेंड कि नो मैटर कोई कितना रिच है, बट उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है कहीं ना कहीं एक्चुअली वो मतलब थोड़ा सा हार्डर हुआ ही था. तो व्हाट वी पीपल नोटिस इन दैट पीरियड, इवन आई क्या एवरीबडी नोटिस इन दैट पीरियड कि हम हमारी अर्निंग कम थी बट वी वर हैप्पी, वी वर टुगेदर, वी वर हैप्पी इन दैट. सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम जो एक रेट रेस में लगे ना कि हमें ज्यादा कमाना है, मोर एंड मोर वी वांट इन अ लाइफ. तो हो क्या रहा है उसकी वजह से कि वी आर नॉट गिविंग द टाइम टू आवर फैमिली, वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवर चिल्ड्रन. सो दिस इज ओनली द थिंग कि जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड
कि हमें क्या नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा एक भागा दौड़ी में नहीं लगना है, बल्कि हमें क्या करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है विद आवर लव्ड वंस। आगे चलते हैं। Those who prepare green wars, war with gas, war with fire. What he is saying? Those who prepare green wars. The important line is green wars. Green is like green symbolize करता है nature को, यानी कि those who prepare green wars means कि we should not, the people those who are actually exploiting nature. War with gas, war with fire. The people those who are involving in the conflict of the war, the people those who are involving in any kind of the war, जहाँ बड़े बड़े weapons को आप use कर रहे हो, गैस से, फायर से, they should understand कि victory with no survivor. They should understand no matter they will win today, but they will be brave and there will be no one to survive. आगे कहते हैं would put on clean clothes and walk about with their brothers. See, put on clean clothes, important thing, metaphor है यहाँ पे, clean clothes. क्या ऐसा हो सकता है कि हम सफेद कपड़े पहन ले और हमारी एनिमिटी खत्म हो जाए, हम किसी को हेट करते हैं वो हेट हमारी खत्म हो जाए, हमारे अंदर से नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाए, नहीं ना। तो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एक्चुअली सिंबलाइज करता है, जो क्लीन क्लोथ्स है वो मेटाफर है, यहाँ पे मेटाफर आया किसके लिए आया है, पुट ऑन प्योर थॉट्स, मतलब हमें क्या करना है, प्योरिटी ऑफ हार्ट रखना है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, देयर ब्रदर्स, जस्ट फोकस ऑन देयर वर्ड, देयर इज लाइक कि सी हम अपने भाइयों के साथ तो हम हमेशा चलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम हमेशा चलते हैं, बट देयर ब्रदर्स मींस लाइक हम जिन्हें अपना एनिमी कंसीडर करते हैं, एक्चुअली वी शुड स्पेंड सम टाइम विद दोस पीपल। सी इसका एग्जांपल मैं हमेशा क्लास में देती हूँ कि जैसे मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, आपका किसी बच्चे से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, आपको मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हो गए, यू आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, और टीचर को तो नहीं पता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट, टीचर ने उठा के आपको बिठा दिया उसके पास, आप 1 पीरियड नहीं बात करें, 2 पीरियड बात नहीं करें, आप 3 पीरियड नहीं बात करें, बट होगा क्या अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे आप किसी ना किसी बहाने से आपकी उससे बात हो जाएगी एंड द कॉन्फ्लिक्ट जो था वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। सो द पॉइंट क्या कहता है, आप जिसको अपना एनिमी कंसीडर करते हैं ना, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन एंड कंसीडर द टाइम कि दिस विल रिमूव आवर नेगेटिविटी फ्रॉम आवर हार्ट और विद दैट पर्सन एक्चुअली। आगे पॉइंट ये भी कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। देखो ये मैं सोचना कि मैम कह रही है कुछ नहीं करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, पढ़े रहना, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट। व्हाट पॉइंट बिल्कुल क्लियर करता है अपने आपको, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। आप कंप्लीटली इनएक्टिव मत हो जाओ कि आप बिस्तर पर पढ़े, अब आप देखिए बिस्तर पर पढ़ रही, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कैलेंडर की डेट चेंज नहीं होगी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट मूविंग, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट मूविंग। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप बिल्कुल डेथ मोड में चले जाएं एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सिंपली ही वांट टू क्लियरफाई इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। हमें क्या करना है, हमें सेल्फिश होकर नहीं जीना, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी सेल्फिश, वी हैव टू मूव ऑन इन अ लाइफ बट नॉट इन अ सेल्फिश वे एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ठीक है। और हमें क्या करना है, मतलब मे बी कुछ टाइम के लिए वी विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the death. See, according to poet, इंसान की लाइफ में 2 प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ में 2 प्रॉब्लम्स हैं। The one is that sometimes ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कभी भी लगता है समझ नहीं आ रहा what to do, ठीक है, we are so listless in life कि नहीं समझ में आता आगे करना क्या है। तो पोइट कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन से होगा क्या, we will get the answer of that question कि आगे क्या करना है, ठीक है। of never understanding ourselves ना हमें समझ में आएगा, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, we'll spend some me time with us, तो होगा क्या कि हमें समझ में आ गया हमें आगे क्या करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेथ। जो डेथ से सबको एक डर लगता है ना, वो एक डर, वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि डेथ इज इनएविटेबल, दैट विल कम आउट, मतलब आप उसे कुछ भी कर लो, डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो द पोइट सेज कि अगर कोई पर्सन इंट्रोस्पेक्शन करता है तो उसके जो 2 सैडनेस है, इवन द सिंपली द क्वेश्चन था व्हाट आर द 2 सैडनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा, सो यू शुड रिमेंबर the one we are not able to understand ourselves sometimes and the one that we are actually scared of the death. So again the most important thing, perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. See आपने ऑटम सीजन देखा होगा, ऑटम सीजन होता क्या है, ऑटम सीजन में सारे जो पेड़ की जो पत्तियां वो बिल्कुल वैसे हो जाती हैं, एकदम मतलब झड़ जाती हैं और इट सीम्स लाइक कि पेड़ ऑलमोस्ट गिर ही जाएगा। बट आपने देखा जैसे द वेदर चेंजेस, ठीक है, जैसे चीजें चेंज होती हैं आप देखते हो आफ्टर वाइल जो पूरा पेड़ है वो रिवाइव हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पोइट जो ऑटम पीरियड है ना, ऑटम सीजन जो है दैट इज द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ अर्थ। तो जो पोइट ये कह रहा है कि इवन सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि नेचर का कौन सा सिंबल पोइट ने यूज किया है कि विच कैन टीच अस सम इंपॉर्टेंट लेसन्स। सो अर्थ, द पोइट इज सेइंग अर्थ कैन टीच अस, अगेन द पोइट डिवाइस इज देयर, अर्थ इज नॉट अ टीचर, टीचर नहीं अर्थ, लेकिन क्या कह रहा है, अर्थ कैन टीच अस। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन। अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 and you'll all keep quiet and I'll go. See, you can notice in the first line he was saying now we will count up to 12 and we'll all keep still, but now he's saying I will count up to 12 and I will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. According to poet, लास्ट में बड़े ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ पोइट जो है पोइम को खत्म करता है, जहाँ पे वो ये होप कर रहा है कि जो उसने मैसेज दिया था दैट मैसेज हैज रीच्ड टू द रीडर्स और रीडर्स जो उस बात को इंप्लीमेंट करेंगे इन लाइफ में। आई होप कि आपको पोइम समझ में आई होगी। थैंक यू।